Tempers have ran at high at Rajendra Nagar for the second consecutive day as hundreds of students have continued their sit-in protest demanding the enforcement of rules, justice and compensation for the 3 students who have died at a flooded basement of coaching center. The students who have refused to move on from outside the Rouse IAS Study Circle building coaching center continued to demand the compensation for the families of the deceased. Meanwhile, they have also announced that if their demands will not be accepted by 3 p.m. today, the authorities and the government, they will go on an indefinite strike till thereafter. Meanwhile, the MCD had carried out a massive drive to clear out the footpaths of the encroachments blocking the drains, which allegedly had also intensified into the filling up of the water within the basement up to 12 feet when the death of the students had happened while they were using the library, which was built illegally. And the MCD has also increased the chances of the water logging while it also sealed some of the coaching institutes. These acts did not pacify the protesters. The MCD had actually got into action after the death had happened of these 3 students. Meanwhile, my colleague has also filed a ground report on this very tragedy and the killer apathy. Let's now listen in. Who do you blame? You blame the department, you blame MCD, you blame the DFS, you blame the government, you blame the system for something that, mishap that was happening for a very long time. The MCD took, 2 days to, put an action. There was compensation. There are students on protesting. They are not supposed to protest. It is not their age to protest. Their age to study, the age to do a living for themselves. And even, the aspirants who lost their lives also wanted to become something. They were aspirants. They were hoping to become something. But as a result of that, also you see they lost their lives in a waterlogging situation that is happening in the national capital. That is happening in the capital itself. So definitely, who do you blame for something like that? And we are also joined by student protesters who are here from 2 days itself to to get justice for their loved ones, for their families, for their friends, for their colleagues. Ma'am, my very first question to you would be, what is your immediate demand and what is your long-term demands if you tell our viewers who are watching us on television? Our immediate demand, which should be coming in effect very soon, should be compensation to the bereaving family. That's because this entire protest is our support. It's our support towards them, that we are standing besides them. This is our first immediate demand. Secondly, if at all again due to the rainfall we do not want similar incident to happen again, we cannot afford to lose another life. So what they have to do is they have to immediately repair all the sewage. They have to do proper groundwork so that there is no waterlogging or water clogging in the buildings. And also they need to take care of the heavily densed wired areas so that any open wiring, if any open wiring is spotted, they really need to fix it. This is our immediate demand. Also, one of our immediate demand is that the FIR needs to be public. We really need to know the details, who is arrested, when they were arrested, all the details, if the administration has been included in the FIR or not, if the MCD officials are included, whoever is responsible for such a mishap is included in the FIR or not. MCD official. There should be an FIR against Rouse office administration and MCD officials. This is our immediate demand. And what is your long-term demand? सर लॉन्ग टर्म डिमांड हियर इज दैट सर जो भी चीज़ें यहाँ पर बच्चे आगे फेस ना करें, जो पहले हो चुका है सर वो उसको अगर आगे ना फेस होने देना है तो सर बाकी जो चीज़ें यहाँ चल रही है वाटर लॉगिंग, सर दिस इज़ द कॉमन प्रॉब्लम. वी आर फेसिंग दिस सिंस 5 years 6 years. आई इवन डोंट काउंट द ईयर्स. सर इतना वाटर लॉगिंग कि लोग अपने घुटने तक भी पैंट चढ़ा लेते हैं, फिर भी वो आ नहीं पाते यहाँ पर. सर दूसरी चीज़ इलीगल लाइब्रेरीज. सर वो लाइब्रेरीज दे आर गैस चेम्बर्स. वहाँ पर अगर एसी ना चले ना सर तो बच्चा घूट के मर जाएगा. सर तीसरी डिमांड है सर रेंट हाइक. सर जो यहाँ पर ब्रोकर और ओनर का कुनंड्रम है, जो इनका नेक्सस है, सर इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है. ब्रोकर यहाँ बच्चा आते ही शोषित हो जाता है. सर आने के साथ सबसे पहले उसको ब्रोकर मिलता है, वो ओनर के पास ले जाता है,
दे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द मनी फ्रॉम देम लिटरली। वो ऐसा करते हैं कि सर पैसे बिल्कुल खींचना चाहते हैं, ऐसा लगता है। सर किसी भी यहाँ पर आप 4x4 के कमरे में चले जाइए सर, रेंट सर 15,000 20,000। पीजी ओनर्स सर ये 20-20 हज़ार में सर रेंट हाइक, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरी चीज़ सर, मैम ने जैसा बोला कि जो वायरिंग है, वायरिंग जो है सर ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। यहाँ आप चले जाओगे करोल बाग के एरिया में, आप कहीं भी किसी भी एरिया में चले जाओ, ये वायरिंग जो है, नंगी तारे यहाँ पर हर जगह आपको मिल जाएंगे सर। ये सब चीज़ें बिल्कुल सुधरनी चाहिए। और सर यहाँ बात रहा कि हम बैठे हैं सर, एमसीडी के ऑफिशियल से यहाँ आए, हमसे बात करें, वी आर फोल्डिंग आवर हैंड, हम यहाँ स्ट्रांगली बैठे रहेंगे सर। जब तक वो नहीं आएंगे हम यहाँ से नहीं लेंगे सर, नेवर। और ये हमारे डिमांड्स जब तक नहीं माने सर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ट्विटर हैंडल पे अपलोड हो रहा है कि सर कमिटी बनाई गई है सर, नो एक्शन, नो एक्शन सर, उस पर एक्शन भी नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है सर। यहाँ पर जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक कोई एक्शन नहीं ली जाएगी सर। हम चाहते हैं कि जल्दी से रिपोर्ट आए, एक्शन ली जाए, और यहाँ पर हमारे जितने भी डिमांड्स हैं इमीडिएट इफेक्ट पे, जो इमीडिएट इफेक्ट पे डिमांड्स चाहिए हम, वो बिल्कुल फुलफिल किया जाए और लॉन्ग टर्म डिमांड्स पे ध्यान दिया जाए और उसको भी किया जाए। अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर सर, हम यहीं बैठे रहेंगे, दैट्स इट। सर आपको भी कुछ बोलना? सर ओल्ड राजेंद्र नगर की जितने भी लाइब्रेरी है जो बेसमेंट पे है, वो सब जो दिल्ली का रूल्स है उसके खिलाफ बना हुआ है, और उसमें एक एग्ज़िट पॉइंट और एक एंट्री पॉइंट स्टूडेंट के लिए, यूपीएससी स्टूडेंट के लिए कोई भी सेफ्टी नहीं है। हम छोटे छोटे कमरे पे हमारे एक सीट के लिए 2,000 से भी ज़्यादा फीस लिया जाता है एवं उसमें कोई भी सेफ्टी नहीं रहता है। तो हम डिमांड करते हैं कि आने वाले टाइम पे इसको देखा जाए और लाइब्रेरी को अच्छे से किया जाए। थैंक यू। सर आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, एक जैसे सर भी बता रहे थे, एक हाई लेवल कमेटी भी बैठी है एमएचए के द्वारा, और उन्होंने बोला था रिपोर्ट विल बी सेंट, हैज़ टू बी सेंट विद इन 30 days। तो उस पर व्हाट इज़ योर रिएक्शन? तो क्या ऑब्जेक्टिव है ये नहीं बताया गया है, कोई उसमें कोई रिटर्न प्रूफ नहीं मिला है। बस ये एक ट्विटर हैंडल पे वो कर दिया गया है, मतलब एक आश्वासन दे दिया गया है कि बनाया गया है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। हम चाहते हैं कि हम आके ऑफिशियल्स हमको ये प्रूफ दें, कोई भी रिटर्न फॉर्म में प्रूफ दें ये लिया गया है। और हमारे डिमांड्स है कंपनसेशन जो मिलना चाहिए 5 करोड़, वो बाई राउज आईजेएस, और जो एमसीडी जो वो करता है वो अलग से है, लेकिन 5 करोड़ कम से कम ईच स्टूडेंट मिलना चाहिए राउज से। और लाइब्रेरियाँ, ये जो अवैध लाइब्रेरियाँ हैं उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए परमानेंटली, ताकि दोबारा ऐसे किसी नीलेश या ये नवीन के साथ ऐसा ना हो, वो ना मरे। और हमारी और डिमांड है जैसे सीवर्स और इनकी वाटर लॉगिंग की जो समस्या है, इनको तुरंत से तुरंत सॉल्व करना चाहिए। बस धन्यवाद। मैम, आई विल ऑल्सो बी आस्किंग यू, you know, the LG apparently he came yesterday, and I guess he spoke to you all also, and he gave a compensation of 10 lakhs. Do you feel it is enough? No, आप ये देखिए कि the people who have died had such bright future, and forget about the bright future, but the value. You are compensating it with only 10 lakh rupees. Their life value is worth of 10 lakh rupees only. नहीं सर, 5 crore for each disease. अगर इससे कम सर, वी आर नॉट गोइंग टू 10 लाख रुपया तो यहाँ पे इस जगह पर ऐसा है कि it gets spent within 1 or 2 years. It goes into coaching. It goes into the coaching might have only. spent this amount of Also, money in coaching. these students had such bright futures. They would have become IPS, they would have become IRS. The return of investment, if we talk about, it would have been more than 5 crores rupees, I guess. Exactly. So we really do not want the failure of the system to actually exploit the family members, the diseased family members who are left behind. We really want to stand in solidarity with them, and we really want them to know that the worth of your child is not mere 10 lakh rupees. If it is, then it would be a shame on us, it would be a shame on our protest, and it would be a shame on the entire ecosystem which is surviving here. And ma'am, my very last question to you would be, now the MCD has finally acted upon. I know it's too late. They have closed 5 libraries, but do you think it is very late? And again, another follow-up question is, do you think that this will again keep on happening, and the libraries that have been closed will again open after a while?
Yes, sir, definitely it's going to open again after a while because this has been happening here in this area. Whenever some incident occurs, the authority suddenly becomes overactive and then they start shutdowns. But if you will see after a few months or maybe sometimes even after a few weeks, they ease the rules and the residents, they are back with the same old routine and their own old ways to exploit money from the students. And sir, what is your viewpoint? सर लाइब्रेरीज, सर जब से ये सील वाली चीज़ें हो रही हैं, सर लाइब्रेरीज अपनी आइडेंटिटी छिपा के कुछ दिनों के लिए लाइब्रेरीज बंद कर दी है। सर ये बहुत प्री प्लान्ड है। कुछ दिनों के बाद फिर एमसीडी आएगी, फिर पैसे मिलेंगे, दिए जाएंगे उनको, फिर से वो लाइब्रेरीज खुलेंगी और खुलेंगी, बच्चे जाएंगे। बच्चों को कुछ नहीं पता सर, बाहर से आते हैं वो बच्चे, वहाँ जाएंगे, फिर पानी भरेगा, फिर ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जिससे हमें फिर यहाँ आना पड़ेगा। सर हम यहाँ दोबारा नहीं आना चाहते हैं, भगवान ना करे हमें वहाँ पर दोबारा आना पड़े। सर वी आर हियर, हम चाहते हैं कि जितनी भी सेफ्टी मेजर्स ली गई हैं एमसीडी उसकी थॉरो जांच करे उसकी। सर ये बहुत ज़रूरी है सर। और जितने भी बिल्डिंग्स हैं सर, मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ सर, मतलब दैट बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड इन सो इम्प्रॉपर मैनर। मतलब सर ऐसे मेरे बिल्डिंग नहीं है सर, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, दैट इज़ कभी भी कोलैप्स हो सकती हैं। सर यहाँ पर स्टूडेंट एक कॉमोडिटी बन के रह गया है, ओनली अ कॉमोडिटी। यहाँ आता है और उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उससे मनी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उस घंटे के लिए बच्चों को कहीं भी किसी भी रूम में उन्हें भर दिया जाता है, ये नहीं देखा जाता कि उनके बच्चों के साथ कभी कोई इंसिडेंट हो सकता है। कि यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्डिंग की हालत इतनी गंभीर है सर कि कभी भी कोलैप्स हो सकती हो। और यहाँ तो केवल 3 बच्चे गए, कई सारी बिल्डिंगों में 15 से 20 बच्चे भरे हुए हैं। और बिल्डिंग की आप हालत देख रहे हो, बिल्कुल मरी मट हालत है उन बिल्डिंगों की। तो ये हो सकता है तो एमसीडी ने एक बार जाके पूरा सर्वे करना चाहिए बिल्डिंगों का। और सर जो हमें जो एफआईआर प्रोवाइड की गई उनमें किसी भी राउस एडमिनिस्ट्रेशन या एमसीडी ऑफिसर का नाम है ही नहीं। वो जो सबसे नीचे तबके के ऑफिसर से जेई, उनको पनिश किया जा रहा है दिखाने के लिए कि कुछ कार्रवाई हो रही है। हाँ, जो जबकि जो मेन कल्प्रिट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको तो बैठे हुए हैं अभी भी एसी में। आके डीसीपी सर बता रहे थे कि मेरा गला खराब हो गया, आके हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं। हम यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हैं सर। हमें बस हमारी जो कॉमन सी डिमांड है जो मिलनी चाहिए। लड़की की मतलब स्टूडेंट्स की जान गई है, एक मतलब कॉमन बात नहीं है कि कुछ भी ऐसे हो गया है। वो कुछ नहीं कर रहे थे, बस अपना क्या है कि ड्रीम फॉलो कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे सर। वो यहाँ लापरवाही से किसी सड़क के बीच में नहीं लेटे हुए थे कि उनकी एक्सीडेंट हो गया, मर गए। तो सर इसकी मतलब अच्छे से जांच होनी चाहिए। जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि ये दिखावे के लिए जेई को सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। डीसीपी सर आके हमको समझा रहे हैं कि एफआईआर हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब जो भी थे, हम डीसीपी सर थे या फिर कोई, मैं नहीं जानता, लेकिन पुलिस ऑफिशियल सुबह में तो मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही थी कि बैरिकेड खोल देनी चाहिए और लोगों को प्रोटेस्ट की साइड अलग कर देनी चाहिए। सर यहाँ पर अलग भी रास्ते, अल्टरनेट रूट्स भी हैं जहाँ से व्हीकल्स पास हो सकती हैं। आप हमें साइड में क्यों बैठाना चाहते हो सर? क्या ये इतना छोटा मुद्दा है कि हम साइड में बैठ के प्रोटेस्ट करें? 4 लोगों की जान गई है सर। हाँ, अभी बंद है सर। सुबह में डीसीपी सर, आई डोंट नो विच रैंक ही वाज ऑन, वो आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग साइड में हो जाए। क्यों हो साइड में सर? वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट हियर, वी हैव राइट टू असेंबल हियर, वी हैव राइट, वी आर क्लेमिंग आवर राइट। सर हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और हम यहाँ से नहीं हटेंगे सर। So yes, viewers, these were the students who were protesting, and definitely, I mean, who wants to be on the streets while they have so much to study, they have an ambition, they want to become something, but to get justice, to bring justice to their loved ones, to their families, they are on the streets, they are protesting. This is me, Brian Anthony Thomas, signing off with camera person Pawan for NewsX Delhi. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.